चलो, so the topic that we are going to start is what we call as rotational motion. In Marathi we people call it घालिंग लोटांगन वाला motion. Why घालिंग लोटांगन? आपने देखा होगा कि जब भी घालिंग लोटांगन चालू होता है तो लोग ऐसे गोल गोल घूमना चालू करते हैं, है ना? वो वही टाइप का मोशन है that we are gonna study today. And in that particular motion we have multiple example. Like one of the example is rotation. क्यों अवनीश 10 मिनट में क्यों? सब लोग कैमरा ऑन कियो, जल्दी जल्दी, नाटक नहीं चाहिए। मैंने ऑन किया ना, मेरे को मन नहीं हो रहा था फिर भी मैंने ऑन किया, तो आपको भी करना है। ओके, सो माय पॉइंट इज दैट वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स। लाइक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन मैंने आपको बताया घालिंग लोटांगन। ओके, द सेकंड एग्जांपल, ओके उनिश, द सेकंड एग्जांपल इज द rotation of the earth about its own axis. Okay, third example is merry-go-round. Fourth example is fan. So you got overall idea what exactly rotational motion is. So let's distinguish between circular motion and rotational motion. What exactly the difference between these two? So let's say we consider a body, and this particular body, मान के चलो ऐसा वाला कोई cylindrical body है. Now this particular cylindrical body, the name of the topic is rotational dynamics. Yeah, Aditya, what do you want, buddy? अभी अगर समझो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आउटसाइड में एक एक्सिस है, and this object is actually gonna revolve around this axis, then we say that the object is performing what we call as circular motion. We have already studied circular motion in the topic motion in plane. So circular motion में क्या होता है? Axis जो होता है वो object से बाहर होता है. But now let's talk about another scenario. In another scenario, what we are gonna do is that we are gonna consider same object, but this time इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो भी एक्सिस है वो एक्सिस ऑब्जेक्ट के बीच में से पास होता है. नीड नॉट टू बी थ्रू सेंटर, बट कहीं पे भी ऑब्जेक्ट से अटैच होता है. लाइक दिस इज एग्जांपल ऑफ रोटेशन. तो अभी जो ऑब्जेक्ट करेगा वो रोटेशन करेगा. द अनदर एग्जांपल ऑफ रोटेशन विल बी दिस. अभी भी देखो एक्सिस ऑब्जेक्ट को टच करके ही जा रहा है. So these two are example of rotational motion, whereas this is the example of circular motion. What is the difference? In circular motion, axis is away from the object. So basically the object revolves around axis, whereas in case of rotational motion, axis is touching the object or axis passes through the object. तो ये होता है रोटेशनल मोशन. एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. अभी वी आर गोना कंपेयर रोटेशनल मोशन विद ट्रांसलेशनल मोशन. हाउ? विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दीस टू सिस्टम. बोलो ना. So can you compare the examples with the circular motion? एग्जाम्पल्स, और मतलब लाइक यही बताओ कि कोई दो डिफरेंट एग्जाम्पल दे लो. नहीं, आपने जो 3-4 एग्जांपल्स बताया ना उसमें से. Okay, so let's talk about a simple example. This particular scenario can be क्या बोलते हैं, compared with Earth's rotation about its own axis, and the scenario of circular can be compared with Earth revolving around the sun. तो सन के थ्रू एक्सिस पास होता है, बराबर. तो अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. नाउ यू नो दैट इट्स नॉट एक्चुअली अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट. लेट्स जस्ट एज्यूम दैट इट्स अ सर्कुलर ऑर्बिट. तो अगर समझो अर्थ रिवॉल्व हो रहा है अराउंड सन, इट इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन. बट इफ अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट इज नोन एज रोटेशनल मोशन. इज इट नाउ क्लियर? लाइक या फिर मैं ऑब्जेक्ट घुमा के Basically it's बताऊं. performing both ना. कौन सा? अर्थ ना, या अर्थ इज परफॉर्मिंग बोथ. But my focus in this chapter is only on rotational perspective, rotational aspect. So I'm not gonna concern about circular that much. But is it clear? समझा difference? Okay. Yes. Very good. चलो, let's now talk about next topic. अभी next topic क्या है? ये आपने rotation का देखा, circular देखा, rotational देखा and all देखा. अभी simple चीजें देखते. We are gonna study two examples. First of all, let's consider ground, and on this ground, अच्छा इसके notes हैं अपने पास, अच्छे notes हैं, don't worry about it. Okay, but still if you want to write down something, note down some important thing, you're on your own, you can do that. तो समझो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है and you want to move this particular object. अभी आपने ऑब्जेक्ट को बोला
कि इधर आ जा, तो ऑब्जेक्ट Sir, you're not audible, neither is your screen visible. Screen is visible, but he isn't audible, I guess. Your voice is not coming. Naza ka Tanvi? Tuzan Saran. Yeah, okay. cameras, guys. I've turned on. So we were talking about some example. Imagine this is the ground, and on this particular ground we have object. अभी if I say to this particular object कि बाबा मेरे पास आ जा, तो object नहीं आने वाला है, and you know that because this particular object is actually unable to move on its own. This inability of the object, क्या बोला? Inability of the object to move on its own is known as inertia. इसका नाम क्या है पता है? इसको इनर्शिया बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मूव नहीं हो सकता ना, स्टेट तो ऑफ इसीलिए रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, स्टेट ऑफ रेस्ट यू कुड से। सो स्टेट ऑफ रेस्ट को ही क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ओके, अभी आपको ये इनर्शिया का कंसेप्ट तो समझ गया है। क्रिंजल कैमरा ऑन करो, बड़ी रेशमा कैमरा ऑन करो, साध्वी कैमरा ऑन करो, शिवांगी यू वांट मी टू थ्रो यू आउट लाइक द मॉर्निंग? साध्वी कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी सब लोग। अभिषेक आपको भी ऑन करना है, अदिति, अदनान। यार ये ना रिकॉर्डिंग में बार बार ऐसा बोलना प्रॉपर नहीं लगता, तो आप समझ जाओ, मेरे को बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। आई एम गोना डायरेक्टली रिमूव यू। तो इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन इट्स ओन इज नोन एज इनर्शिया। तो अगर समझो इस रेजिस्टेंस को, इस इनएबिलिटी को आपको ओवरकम करना है, यू हैव टू विन ओवर दिस इनएबिलिटी, तो आप क्या लगा सकते हो? कुछ भी करके इस ऑब्जेक्ट को मूव करना, फोर्स लगा लगाएंगे। बराबर, External force. concept, external force. So what you understood from this particular thing? सर ये आपने जो बोला कंबाइंड मिलके ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन जाएगा। Yes, to overcome inertia we need force. जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो हम लोग inertia को overcome करते हैं। Now let's take another example. Imagine this way, we have an object and this time we actually want to rotate this object. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें क्या करना है? रोटेट करना है। अभी रोटेट करने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत है, करेक्ट? पहले बात तो समझो, इस ऑब्जेक्ट को मैंने बोला कि भाई रोटेट हो जा, मैं बोला इसको 2 राउंड मार अपने ओन एक्सिस के अराउंड। विल इट डू इट ऑन इट्स ओन? नो। कर पाएगा वो? नहीं ना, मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाएगा। माइक 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 रश्मि, माइक कौन बोल रहा है? रश्मि कौन बोल रहा है? माइक बंद करो। The inability of the object to rotate on its own is known as, इसका नाम सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई इंडियंस। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मुंबई इंडियंस, और अदरवाइज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बीच में सीएस के मत घुसाना, अपने लिए एमआई इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में। तो क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप रोटेट नहीं हो सकता, तो उसको रोटेट करने के लिए आपको इस इनर्शिया को ओवरकम करना जरूरी है। क्या लगता है रे किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए? क्या लगता है? टॉर्क लगता है। वेरी गुड। सो यू विल एग्री विथ मी, to overcome mi, that is moment of inertia, we need something what we call as torque. तो हमें लगेगी जरूरत टॉर्क की। अच्छा, बाय द वे, डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली टॉर्क इज, या फिर टॉर्क किसके वजह से लगता है? कपल, यस कपल, इट्स बिकॉज ऑफ द कपल। क्या बोल रहा है तू?
किस क्या बोला मैंने था उसका बे? फॉर्मूला बोला, मतलब अच्छा, F टॉर्क cos का R. फॉर्मूला बोला, बट टॉर्क इज बिकॉज ऑफ कपल। तो कपल क्या होता है, यू ऑलरेडी नो इट, बराबर। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। चलो, व्हाई आर यू स्माइलिंग? Yes. अच्छा, नहीं आते रहे क्या? ओके। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। तो दो फोर्सेस मिलते हैं तो कपल लगता है। देखो, जैसे कि ये कप है, कप के ऊपर मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूँ तो ये कप रोटेट हो रहा है। ओके, फोर्सेस का डायरेक्शन देखो, एक उंगली पीछे की तरफ, एक उंगली आगे की तरफ। दिस इज व्हाट वी कॉल एज टॉर्क। तो टॉर्क इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम करता है। अभी एक बात बताओ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, एंड दूसरा, दिस इज एक्चुअली अ सिली क्वेश्चन बट लेट्स आस्क इट, व्हाई नॉट, बिकॉज व्हाई नॉट। सो 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है और एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है। कौन से ऑब्जेक्ट को मूव करने में ज्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है? ऑब्वियसली 5. 5 5 kg, सिंपल। तो दैट मीन्स जिसका मास ज्यादा उसके लिए फोर्स ज्यादा, एंड फोर्स क्यों ज्यादा लगा? उसका इनर्शिया ज्यादा। सो इनडायरेक्टली आई कैन से दैट मास प्रोवाइड्स इनर्शिया। कौन प्रोवाइड करता है इनर्शिया? रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? मास प्रोवाइड करता है। क्या ये चीज से एग्री करते हो हम लोग, आप लोग? यस अरे यस और नो? सर बहुत Okay. कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या अरे इसमें क्या कंफ्यूजिंग है? अच्छा बता, क्या कंफ्यूजिंग लगा? मेरे को डर लग रहा है अभी पहले पहले बता। आपने बोला कि द रेस्ट ऑफ द स्टेट इज इनर्शिया, राइट? ना, मैं बोला इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मूव ऑन इट्स ओन इज इनर्शिया, मतलब वो अपने आप मूव नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट। फिर मैंने हाँ। बोला कि अपने आप क्यों मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पास मास है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनर्शिया कौन प्रोवाइड कर रहा है? मास प्रोवाइड कर रहा है। आर यू गेटिंग? मास के वजह ऑब्जेक्ट से इज नॉट इनर्शिया हो रहा है, राइट? हाँ, तो मास इज द रीजन बिहाइंड इनर्शिया। या आई एग्री। Actually, I am not saying mass equals to inertia. I am saying because of the mass we have inertia. Now, are you getting it? या हाँ, पक्का पक्का कंफ्यूजन नहीं करना है। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, एकदम सिंपल सा नहीं। सिंपल सा टॉपिक है। दो हाँ, चीजें सीखी ऊपर हम वाले लोगों में ने। क्लियर हो गई, अभी नीचे वाला वापस बताओ एक बार। मोमेंट हाँ, ऑफ तो नीचे इनर्शिया। वाले में क्या बोला कि ऑब्जेक्ट खुद ब खुद रोटेट नहीं हो सकता। तो अगर वो खुद ब खुद रोटेट नहीं हो सकता तो उसमें इनएबिलिटी ऑफ रोटेशन है, उसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट नहीं हुआ ऑन इट्स ओन, वी कॉल इट एज इनर्शिया। अगर वो रोटेट नहीं हुआ, वी कॉल इट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रांसलेट इनर्शिया, रोटेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आर यू गेटिंग इट नाउ? यस। ट्रांसलेट के लिए फोर्स लगता है, रोटेट करने के लिए टॉर्क लगता है। आर यू गेटिंग इट नाउ? या बस खत्म, वही समझना है आपको। शॉर्ट में दो ही चीजें समझनी है जो हम लोगों ने समझी, और ज्यादा दिमाग को शॉर्ट नहीं लेना। लेट्स मूव ऑन विद द सर नेक्स्ट टॉर्क और क्वेश्चन। फोर्स में क्या फर्क है? तो कैन बोला यू ना, ये देख, अभी फोर्स इज अ सिंगल फोर्स अप्लाइड। लाइक फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट है, आपने एफ हाँ लगाया, हाँ या फिर ऑब्जेक्ट है, आपने एफ लगाया, and whereas torque is actually because of two forces like this. टू फोर्सेस। So दो forces couple. हाँ बोलो नेक्स्ट। सर किसने बोला? I said it. Can you repeat the statement, वो वाला? क्या, कौन सा वाला? To translate you need force and to rotate you need torque, right? Okay, perfect. ट्रांसलेशन के लिए you need force and rotational के लिए you require torque. Okay. So we are done with this particular concept. I'm gonna make it as simple as Sir. possible. मैं actually interesting करने के लिए घुमा फिरा के बोलता हूँ, but then you guys don't get it. I don't know why. So Sir. I'll speak in easy words. बोलो. So torque is something like angle, right? Torque is not angle, buddy. Torque is couple of forces. जब दो forces act होते हैं तो torque लगता है. Torque is a phenomenon which is responsible for rotation of the object. Torque is not angle. Okay. You are not getting it. एक फोर्स जैसे होता है वैसे दो फोर्सेस लगते हैं तब टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अगर तू वाटर का टैप ओपन कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसको रोटेशन के लिए तुझे टॉर्क लगेगा। आर यू गेटिंग इट नाउ? Yeah. Yes. ओके, आई विल बी स्टार्टिंग रिमूविंग पीपल नाउ। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोसेस। लास्ट 1 मिनट। हाँ बोलो, क्या और कुछ बोल रहे How to say translate inertia and rotate? ट्रांसलेट
मारो मुझे, मारो। ट्रांसलेट इनर्शिया, रोटेट movement of inertia, mi, movement of inertia, translate inertia, rotate movement of inertia. ओके, ट्रांसलेट के लिए लगता है फोर्स, रोटेट के लिए लगता है टॉर्क। ओके, मैं अभी ऐसे ही सिखाऊंगा आपको, मैं घुमा फिरा के बोलूंगा ही नहीं। ट्रांसलेट में इनर्शिया होता है, उसको फोर्स लगता है ओवरकम करने के लिए, रोटेट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसको ओवरकम करने के लिए टॉर्क लगता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ट्रांसलेट और रोटेशन के फॉर्मूलाज कंपेयर करते हैं, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। लेट्स बिगिन। So on our left hand side, we are gonna create some terms related to translational motion, okay? And on your right hand side, we are gonna create some term of rotational motion. ये क्या लिख लिया मैंने? Translational, okay? And this one is rotational, okay? पहली चीज, अभी आपने देखा कि ट्रांसलेशनल मोशन में मास इनर्शिया प्रोवाइड करता है, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द सिंबल फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। ट्रांसलेशन में मास प्रोवाइड करता है, रोटेशन में आई प्रोवाइड करता है। ट्रांसलेशनल में लीनियर वेलोसिटी होता है v, रोटेशनल में एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा। ट्रांसलेशनल में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है s, रोटेशनल में क्या होगा रे? व्हाट विल बी द सिंबल? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का थीटा। यस, वेरी गुड। एंगुलर थीटा सिंबल बोलो। अगर इधर पे a हुआ ट्रांसलेशन में, रोटेशनल में क्या होगा? B. अल्फा। ओके, आई एम जस्ट चेंजिंग सिंबल्स, आई एम जस्ट चेंजिंग डिफरेंट सिंबल। जैसे ट्रांसलेशन में एक्सेलरेशन को a डिनोट करते हैं, रोटेशनल में एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। m हो गया, v हो गया, s हो गया, a हो गया। अभी थोड़ी सिंपल चीज है। आपने नोटिस किया ट्रांसलेशनल में फोर्स होता है, रोटेशनल में होता है टॉर्क। ओके, हाँ, अभी सुनो। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन ट्रांसलेशनल मोशन? Half mv square. वेरी सिंपल, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल मोशन में देखो वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। हाफ एज इट इज, mass will be replaced with I, so the term will be half I. V will be replaced with omega, so you get half I omega square. Do you remember KTG में मैंने बोला था half I omega square करके कुछ एक टर्म आया था बीच में, मैंने बोला था ये हम लोग रोटेशनल में पढ़ेंगे। This is the term we have been talking about, half I omega square. एक और फॉर्मूला करते हैं। आपको पता है F equals to ma होता है, mass into acceleration. Modify this particular term, क्या हो जाएगा ये? I into torque. Sorry, I into alpha. I into alpha. F, but F भी रिप्लेस होगा ना, F रिप्लेस होगा टॉर्क से, मास रिप्लेस होगा I से, और A रिप्लेस होगा अल्फा से। लो, ये इतनी सिंपल चीज है यार, इसमें क्या टेंशन लेना है। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला बता दो चलो। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? mv। वेरी गुड। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है L। रिप्लेस मारो अब इसको। I into omega. ओमेगा, वेरी गुड। सो यू गॉट द ओवरऑल आइडिया कि ये चीजें कैसे रिलेट करनी है या फिर कंपेयर करनी है। एक्चुअली वी कुड से ट्रांसलेशनल सिस्टम एंड रोटेशनल सिस्टम्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सी व्हिच इज द वर्ड आई एम यूजिंग? सिमिलर। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड सेम, because if I have been using the word same, it means something different. Okay, same मतलब exactly same होता है ना, हम लोग same थोड़ी बात कर रहे हैं, हम similar बोल रहे हैं। Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? Yes, sir. Okay, अभी ना आपको पता है वो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन होती है, कुछ तो पढ़ा था आपने शायद, 3 काइनेमेटिकल। हाँ, so let us try to modify those equations. Okay, let's begin. ट्रांसलेशनल में भी मॉडिफाई करेंगे और रोटेशनल में भी मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसलेशनल में क्या होता है? V is equal to U plus AT. ओके, सो V equals to U plus AT। चलो रोटेशनल में मॉडिफाई करते हैं। V मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा। U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। A के जगह अल्फा
टाइम का कोई कुछ नहीं कर सकता, टाइम का टी। डन। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at हाफ एटी स्क्वायर। स्क्वायर। We'll try to modify it. अच्छा, who will tell me this equation? Riya, tell me ये modification कैसे होगा? रिया मौर्य, हाँ माइक अनम्यूट कर। नहीं समझा सर। अरे मतलब चेंज कैसे होगा? जैसे ये इक्वेशन मैंने कैसे चेंज करके बताया, वैसे ये इक्वेशन नीचे का कैसे चेंज होगा? अच्छा जाने दो, आयुषी तू बता। नो नो वेट वेट, आयुषी तू बता। सर एस का क्या आएगा? मेरे को एस का नहीं समझ रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? थीटा। सर थीटा, थीटा, तो हाँ। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ। व्हाट इज ए रिप्लेस सर विद? ए किससे रिप्लेस होता है याद करो? अल्फा। तो अल्फा टी स्क्वायर। शीतल, शीतल आई एम सीइंग ब्लैक स्क्रीन ना, ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा एक लास्ट इक्वेशन बच जाता है, वो सॉल्व करते हैं। वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कौन बताना चाहते हैं? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अल्फा थीटा। ओके शीतल, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। नाउ इज इट क्लियर गाइस? सब कुछ समझा अच्छे से? Yeah. वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको ये कंसेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम होने वाला है। अभी सब कॉमन फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉमन फॉर्मूला जो v एंड ओमेगा का रिलेशन देता है, एंड यू हैव हर्ड दिस अलॉट, v इक्वल्स टू r ओमेगा। सुना है इसके बारे में? Yeah. अगर नहीं सुना है तो अब भी रट्टा मार लो, अब भी रट्टा मार लो। v इक्वल्स टू r ओमेगा वेयर r इज नथिंग बट रेडियस। ओके, सो v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। सेकेंड चीज a इक्वल्स टू r अल्फा। थर्ड चीज ओमेगा is equals to 2 pi upon capital T. Please tell me, at least you know this formula. यस। Very good. ओमेगा 2 pi by T हो गया। एक और फॉर्मूला है ओमेगा का, that is 2 pi capital N, where this capital N is nothing but revolutions per second. Revolutions per second. एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं? लेट्स टेक वन एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग 10 आरपीएस, मतलब वो एक सेकेंड में 10 बार रिवॉल्व होता है। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में वो कितना रिवॉल्व होता है। द अदर यूनिट यूज्ड फॉर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज नथिंग बट हर्ट्ज। मतलब जो हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट, वही यूनिट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन के लिए वैलिड है, या फिर वो सॉरी एन के लिए वैलिड है। ओके, ये ओमेगा हो गया। ओमेगा का एक और फॉर्मूला है, दैट इज 2 पाई एन अपॉन 60। बट ये अपॉन 60 कब यूज करना है पता है? जब भी आपका एन होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट्स में, दैट इज आरपीएम में होता है। तो जब भी आरपीएम में है अपॉन 60, आरपीएस में यू जस्ट हैव टू यूज 2 पाई एन। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला समझे? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? मैंने लिखा है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड और हर्ट्ज, HZ। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा बाय द वे कोई मुझे ये बताओ ना प्लीज बी डियर एंड टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा। ओमेगा का यूनिट क्या होता है? क्या? सेकेंड फॉर्मूला ये शायद। अरे रैड पर सेकेंड नहीं सुना है आपने यूनिट? चलो ठीक है कोई बात नहीं। ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, उसमें पढ़ा होना चाहिए आपने ये लोगों ने। हाँ सर लेंथ को किस में कन्वर्ट करते हैं अगर रोटेशनल में करेंगे तो?
लेंथ को किस में कन्वर्ट, नहीं मतलब लेंथ में वो एंगल होता है ना, एंगल बड़ी सुन, जैसे अपना नॉर्मल आपका वेलोसिटी होता है ds/dt, ये भी फॉर्मूला, रुको ये फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, गिव मी अ मिनट। बिफोर आई गो डीप इनटू दिस, केदारम ने मुझे एक डाउट पूछा, उसको सेकंड फॉर्मूला नहीं समझा। तो सेकंड फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज नथिंग बट अवर काइनेमेटिकल इक्वेशन। अगर तू कंपेयर करेगा s को रोटेशनल सिस्टम से, तो s क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो रिप्लेस होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, विच इज थीटा। u है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे होगा एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी। फिर इसके बाद a है linear acceleration, it will be replaced with alpha, that is angular acceleration. Okay, निकिता, गौरी, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? सर हाँ बोलो। वो रेडियन अपॉन क्या है, एस प्लेन होते हैं, रेडियन पर सेकेंड, रेड कलर में सेकेंड वाला, अच्छा। अरे v इक्वल्स टू आर ओमेगा कैसे रिलेशन देता है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का, वैसे ये जो फॉर्मूला है वो लीनियर एक्सेलरेशन का एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन देता है। ओके भाई भाई, नो प्रॉब्लम। तो आपको समझा कंसेप्ट ये गाइस, ये फॉर्मूलास क्लियर हुए? रट्टा मार अभी के अभी 2 मिनट दे रहा हूँ, रट्टा। ये फॉर्मूलाज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इनको कंपेयर करना है, बट ये जो बॉटम में है वो रट्टा मारने। सर बंद हो रहा है रे गौरी, हाँ बोल। सर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड ना, हाँ बराबर है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो मीटर को मतलब वही Angular रेडियन में velocity। कन्वर्ट करेंगे, वही चीज पूछ रहा था। हाँ वही मैं वही बताने चीज वाला ना, हूँ, क्योंकि वेलोसिटी में हाँ सर वही, क्योंकि लीनियर में तू डिस्टेंस कवर करता है और इसमें एंगल कवर करता है एंगुलर वेलोसिटी में, और एंगल का एसआई यूनिट रेडियन है। हाँ बोल। अभी हम लोग अगर रोटेशनल का देख रहे हैं, तो ये जो रेड कलर में आपने सेकंड फॉर्मूला लिखा है एक्सीलरेशन का, तो हम लोग ने एक्सीलरेशन क्यों कंसीडर किया? मतलब रेड कलर में जो सेकंड में जो आपने a इक्वल टू r इनटू अल्फा लिखा है ना, तो वो a क्या है? हाँ लीनियर एक्सेलरेशन, f इक्वल्स टू ma, नहीं पता? हाँ ना, तेरे को किसने हाँ नहीं पता बोला? है, बट हम लोग ने ऊपर हाँ। चेंज किया ना ट्रांसलेशन से रोटेशनल में, तो उसमें एक्सेलरेशन फिर ओमेगा में नहीं अल्फा में चेंज हो गया ना। अरे बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंगुलर वाले टर्म्स को लीनियर वाले टर्म्स से कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड दिस r इज द ब्रिज इन बिटवीन। तू ऐसा मत कर, तू पहले a इक्वल्स टू r अल्फा, ये मत सोच कि a अल्फा होता है। पहली बात तो a अल्फा इक्वल नहीं है, a अल्फा में सिमिलरली चेंज होता है, मतलब a जैसे होता है लीनियर में वैसे एंगुलर में अल्फा होता है, बट a और अल्फा इक्वल नहीं है। गेटिंग दिस? और ये कनेक्शन है, ब्रिज है दोनों के बीच में। सो r बेसिकली कनेक्ट्स a एंड अल्फा टुगेदर। तो ये जो बीच में r दिख रहा है ना आपको, वो r a एंड अल्फा को कनेक्ट करने का काम करता है। नाउ इज इट क्लियर? डाउट क्या है तेरा? फिर से नहीं पूरा क्लियर करेंगे ना, डाउट क्या है एग्जैक्टली वो बता मेरे को। विल क्लियर इट कंप्लीटली। हाँ बोल। मैंने पूछी अभी, आपने हम लोग स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोग रोटेशनल वाला देखेंगे, राइट? एवरीथिंग। हाँ बराबर, यस मेरी। हाँ बोल बोल, बढ़िया बोल आगे। हाँ तो ये हम लोग ने देखो ट्रांसलेशन वाला ए लिया और ए को हम लोग ने कन्वर्ट किया अल्फा में, मतलब रोटेशनल के थ्रू देखा तो, राइट? हाँ तो वो सेकेंड वाले फॉर्मूला में हम लोग ने ए क्यों कंसिडर किया, बस उतना। अरे ए सिमिलर है अल्फा से, ओके? ए और अल्फा सिमिलर है। अभी एक क्वेश्चन बता मेरे को, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तेरे को, ओके? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 5 रेडियन per second square and its radius is 2 meter, find linear acceleration। तो क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं वो? ए निकालने के लिए बोल रहे हैं। अभी तू मेरे को बता, ये तेरा अल्फा है
तो तू ऐसा बोलेगी कि अल्फा 5 रेड पर सेकेंड स्क्वायर है तो अपना ए भी 5 होगा, ऐसा बोलेगी? बिकॉज दिस टू आर डिफरेंट थिंग ना, हम रिप्लेस कर रहे हैं, सिमिलर फॉर्मूलाज में कंपेयर कर रहे हैं, बट इसका मतलब नहीं कि दे आर सेम। ओके वेरोनिका, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। तो अगर समझ तुझे ए निकालना है तो फॉर्मूला है ए एंड अल्फा का, ए आर अल्फा होता है, तो आर का वैल्यू कितना है 2, अल्फा का वैल्यू 5, सो ए हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके वेरी गुड। चलो, तो ये हो गए आपके कुछ फॉर्मूलाज, एंड आपने आई गेस रट्टा मारे, क्योंकि मेरा मूड हुआ मैं किसी को भी बीच में फॉर्मूला पूछूंगा, मेरा मूड हुआ मैंने किसी को भी बीच में फॉर्मूला पूछने वाला हूँ। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देख लो, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से पढ़ लो। सर स्क्रीन ब्लैंक है। हाँ क्या ब्लैंक दिख रहा है? आई नहीं सर यहाँ से नेट आ इशू गई। होगा। No, sir. हाँ हाँ ठीक है, नहीं कोई है बात भाई नहीं। इशू। सर अभी हाँ बोलो। अभी आपने वो सम किया है उसमें यूनिट क्या लिया? यूनिट क्या लिया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है ना, और अल्फा लीनियर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। अरे डियर माय स्टूडेंट्स, मैंने ये सारी चीजें आपको 11th में सिखाई है, यूनिट्स में, सर्कुलर मोशन में इसका Yes, क्या sir, होता है। और ठीक है। अगर आपने मेरे साथ नहीं पढ़ा है तो आपने नीरज सर के टॉपिक में तो पढ़ा ही होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मेजरमेंट वाले। ओके, तो अभी 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 ना 2-3 और फॉर्मूला लगने वाले हैं, वो देखते हैं। देखो डियर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, व्हाट डू यू वांट? 1 बाकी मीटिंग एंड। Okay, meeting is gonna end. Yeah. So you can join in the new session and we'll continue over there. Join करो guys.